बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारे पास है मॉडल पेपर इम्तियाज़ शाहिद का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2011 जो है उसका ये पेपर है। उन्होंने ये दिया हुआ है, इसमें इंग्लिश पोर्शन है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑल दो ही हैज़ रिटन द आंसर्स, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू all the revise all the MCQs here and also the math portion. So math portion को अच्छे से solve करके आपको दिखाएंगे. So let's start it with the first one. He is an amateur in stenography. Children are delight of the house. No one has control on his tongue. She was conscious of. I bade farewell to my colleagues. And next one is we went into. आपको पता है कि रूम में जाने के लिए हम यूज़ करते हैं जो वर्ड बहुत into ही होता है. So यहाँ पे we went into the room and sat down on cushion, soft cushions. Will you play with me for a while? That the last fortnight I have noticed that you have been keeping away from the French classes. तो ये हमारे पास ऑप्शन है जी, from, during and from. And next one है जी, from the corner of the street stood a dog under a shed. because यहाँ पे shed की बात हो रही है तो ये under a shed आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 होगा. She is accustomed to. so यहाँ पे हमारे पास accustomed के साथ जो ऑप्शन आएगा that would be 2. Dash my words, I'm telling you nothing the truth. so upon my word I'm telling you nothing but truth. so ये हमारे पास जो ऑप्शन आएगा that would be upon and but. next है जी, dash the room it was very hot but dash the terrace it was cool. so inside the room, because room के अंदर की बात हो रही है तो inside ही आएगा. so inside the room and on the terrace. next है जी, you may leave on Sunday or before but must return within 7 days. so it is the option. send the letter by post to my Ludhiana address. so ये option है आपके पास. dash you and me, between you and me. so because आपके डिफरेंट मतलब दो लोगों के दरमियान बात हो रही तो between you and me होगा. and then since 10 o'clock, because time is no mentions, तो आप यहाँ भी यूज़ करेंगे यही वाला ऑप्शन, between and since. नेक्स्ट है जी, द प्रिजनर इज एक्यूज्ड ऑफ. यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं एक्यूज के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन होती है वो ऑफ ही आती है. दिस इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद. वी मस्ट अडेप्ट आवर सेल्व्स टू. नथिंग कैन अब्जॉर्व यू फ्रॉम द प्रॉमिस यू हैव मेड. सो ये फ्रॉम होगा. ही इज़ अकस्टम्ड टू. नेक्स्ट है जी हमारे पास जनरल नॉलेज का पोर्शन. सो इसको भी हम देख लेते हैं. जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान बिकेम द मेंबर्स ऑफ UNO इन 1992. सो ये आपके पास मेंबर्स बनी है 1992 में. गुरु गोबिंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ द सिक्स. मतलब कौन था, तो उसके बाद में ये जो गुरु गोबिंद सिंह था बेसिकली 10th गुरु ऑफ द सिक्स था. फाउंडर ऑफ खालसा, द इनर काउंसिल ऑफ द सिक्स इन 1690 में. ऑथर ऑफ द डेसम गरनाथ्स, ऑल ऑफ द अबव. सो ये आपके पास ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. So he has mentioned already. Hermann Scheer, Germany, received Right Livelihood Award in 1999 for his indefatigable. Hermann Scheer, Germany, received the Right Livelihood Award in 1999 for his indefatigable work for the promotion of solar energy worldwide. Next has Germany signed the Armistice Treaty on dash the World War I ended. So November 11, 1918. ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू व्हेन डिड जर्मनी अटैक फ्रांस. 1940 में अटैक हुआ था जी. फ्रेडरिक सैंगर इज अ ट्वाइस रेसिपेंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 1958 एंड 1980s. द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स. व्हाट रिस्ट्रिक्ट्स? अल्ट्रावायलेट रेज को रिस्ट्रिक्ट करती है ना ओजोन लेयर. यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ अल्टरिंग ह्यूमन बींग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स. so it is the right option here. Euclid was Greek mathematician था. contributed to the use of deductive principles of logic as the basis of geometry. propounded the geometrical theories. so ये सारी इसकी efficiencies में शामिल है.
Ecology deals with the relationship between organisms and their environment. So the right answer is this. नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसे में देख लेते हैं जी. It's okay, are you getting it or not? सही है. What does ISO stand for? So ISO क्या है जी? International Organization of Standardization. The next Winter Olympic Games are scheduled to take place in 2014 at Sochi. Google क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन भी है. सो गूगल बेसिकली एन इंटरनेट सर्च इंजन है आपके पास. बान की मून जो कि आपके पास साउथ कोरिया का है, ये क्या है? सेक्रेटरी जनरल यूएनओ का था, अभी तो नहीं है बिल्कुल. एंड देन हाउ मैनी ईयर्स डिड नेल्सन मंडेला रिमेन इन प्रिजन? सो ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है. 27 ईयर्स. हाउ मैनी कंट्रीज आर प्रेजेंटली मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM, जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ 120 मेंबर्स हैं. सेक्रेटरी जनरल यूएनओ बान की मून बिलोंग्स टू साउथ कोरिया. तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट होता रहता है काफ़ी. करंटली देयर आर डैश मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो 193 मेंबर्स हैं. करंटली डैश कंट्रीज होल्ड द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर स्टेट्स इन द यूनाइटेड नेशंस, तो वो आपके पास कितने हैं? 2 हैं जी. देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ सार्क. सार्क के कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं सार्क के. सेक्रेटरी जनरल सार्क अहमद सलीम बिलोंग्स टू मालदीव्स. एंड नेक्स्ट है जी, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट पोजेसेस वीटो पावर इन द UNO? सो कनाडा के पास ये वाली पावर नहीं है UNO की, वीटो पावर UNO में. अल जजीरा TV चैनल बिलोंग्स टू कतर. द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया यंगटीज है, जो कि चाइना का रिवर है. द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम पीस पाइपलाइन भी कहते हैं. बराक ओबामा द प्रेजिडेंट ऑफ द US बिलोंग्स टू विच पार्टी? डेमोक्रेटिक पार्टी है. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्टेटस ऑफ एन ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? होली सी, ये आपके पास ऑब्जर्वर कंट्री UNO में. Who won the 100th Davis Cup by defeating Spain? So चेक रिपब्लिक ने ये काम किया है. In which place the 21st Asian Summit was held? ये कहाँ पे था? Peace Palace, Phnom Penh, Cambodia. Pakistan and India has become non-permanent member of the Security Council. 7 times बन चुके हैं ये. अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मैथ का पोर्शन है, इसको हम सॉल्व करेंगे. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा सकूं. फर्स्ट MCQs है हमारे पास. 4 मेटल रॉड्स ऑफ लेंथ 78 सेंटीमीटर है एक की. 104 है, ठीक है जी. 117 है, 169 है. सब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? नेक्स्ट स्टेटमेंट में है जी कि ये आपने कट की हैं इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ. ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल. सो आपने हर लेंथ जो करनी है वो आपके पास लंबी होनी चाहिए, लेंथेड होनी चाहिए पार्ट. वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीस दैट कैन बी कट? तो हमने यहाँ पे क्या चेक करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीस का मतलब ये है कि आपने इसका HCF लेना है. तो लेट्स सी हम इसका HCF लेते हैं. अगर इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊँ आपको तो क्या हो सकता है? यहाँ पे अगर हम इसको खोल दें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. वेट अ मिनट. सही, हम तो इसको सॉल्व करते हैं. हमारे पास थी लेंथ्स थी, ठीक है. अगर मैं आपको दिखा सकूँ ये वाला पोर्शन तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है. तो एक थी 78, 104, ये 117 नेक्स्ट, और लास्ट वन हमारे पास था 16 और 9. आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के लिए आप HCF जो भी लेंगे तो उसके लिए आप 2 9 2 5 10 2 2 बार 4. सो ये एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास 169. नेक्स्ट है जब इसको काटते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2, ये 39 एज इट इज़ आ जाएगा. 2 2 बार 4, 2 6 बार 12.
एंड 117 एज इट इज़ आ जाएगा एंड 169 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कैसे इसको सॉल्व करें। तो 2 से है यस, तो और 3 बट 6 आ जाएगा। 117 एज इट इज़ आ जाएगा, 169 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 और 9 भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये है हमारे पास, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सो 3 है, अब उसके साथ नहीं हो रहा तो 3 तो 13 आ जाएगा हमारे पास। 117 एज इट इज़, 169 एज इट इज़ आ जाएगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस अगर समझ नहीं नज़र आ रहा हो तो। अच्छा जी 3 आ चुका है, तो ये 13 था हमारे पास ऑलरेडी, तो ये 13 एज इट इज़ आ जाएगा। हेयर इज़ ऑल्सो 13 और 3 को अगर हम करें तो हमारे पास आता है, तो कुछ भी नहीं आएगा, ये 117 एज इट इज़ आता है और इसके बाद 169। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को अगर हम ऐसे करने की कोशिश करें तो 13 होगा। तो 13 1 13, 13 1 13 और 13 को अगर हम करें 9 के साथ तो हमारे पास ये आ जाएगा एंड देन 13 को 13 से करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट हम करेंगे, हमें पता है कि 3 3 9 आ जाएगा और 13 1 13 आ चुका है और ये 1 एंड 1 जो होती है, और नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो 3 आएगा एंड देन 13। ओके, अब देखिए हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है दैट इज़ 13। ठीक है 13 है हमारे पास। ये जो हमारे पास 13 आएगा, दिस इज़ बेसिकली, आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे तो हमें यहाँ पे जो HCF लिया है वो हमारे पास है जी 13। तो अब हमारे पास HCF आ चुका है 13। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अगर आपको ये यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। तो 13 हमारे पास HCF आया है इन तमाम का। अब हम एक्चुअली ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास, चूँकि हमने इन तमाम जितनी भी 4 रॉड्स थी उनको हमने डिवाइड करना है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में कट करना था। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 78 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है, ये फर्स्ट आप करेंगे एंड देन आप यहाँ पे प्लस करेंगे, साथ में इसको जो भी इसका आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो 117 डिवाइडेड बाय 13 एंड देन हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 104 डिवाइडेड बाय 13 एंड लास्ट वन इज़ 169 एंड डिवाइडेड बाय 13। सो जो आंसर आएगा वो हमारे पास, जैसे यहाँ पे आपके पास जो होती हैं, जो आंसर आता है 13 आता है, 13 प्लस हो जाएगा एंड देन यहाँ पे हमारे पास आएगा जी 8 एंड देन हमारे पास आएगा यहाँ पे आ जाता है 6 प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9। तो इन तमाम का आप सम करें तो हमारे पास आ जाता है ये जी 36। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये फर्स्ट पोर्शन का वो क्या है 36 है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास मैथ्स का। तो इसका 36 था वो तो आपको पता चल गया होगा कि आपने इसका HCF लिया एंड देन डिवाइड किया ईच लेंथ पे, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास जी, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट्स A, B and C. A student has to pass in each subject. Okay, 20% students failed in A and 22% student failed in B and 16% failed in C. So the total number of student passing the whole examination lies between. तो हमने ये चेक करना है, आंसर्स तो दिया हुआ है बट हाउ वी कैन सॉल्व देम, तो हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास टोटल है 22% है, 20% है और 16% है। तो उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं तमाम एग्जामिनेशन में वो देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो हम चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक, अगर हम यहाँ पे शो कर सकें तो यहाँ पे है 3 तरह के स्टूडेंट्स ने बताया कि 22% ठीक है जो फेल हुए बी में, 20% ए सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं एंड 16% जो है वो आपके पास एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं। अगर आप तमाम का सम करें तो ये हमारे पास बनता है जी 58% टोटल जो फेल हुए हैं सब्जेक्ट्स में। अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास हैं 100 स्टूडेंट्स, टोटल 100 स्टूडेंट्स थे, तब हम जो है वो इसमें से पासिंग देख लेते हैं कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। तो 100 माइनस 58, तो हमारे पास आ जाएंगी जी टोटल ये 42% बनते हैं।
हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास मिनिमम जो रेशो पास होने वाले स्टूडेंट्स की है वो 42% है। एक तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि मिनिमम कितने हमारे पास फेल हो सकते हैं। तो हमने ये कहा है कि मतलब मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 20। तो यहाँ से उसको ऑप्शन ऑब्टेन करने के लिए हमने कहा कि एक्स हमारे पास है बेसिकली 100, और देखें बी सब्जेक्ट जो है मैक्सिमम कितने फेल हुए हैं, 22% हुए हैं। तो हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको 22 को माइनस करते हैं 100 में से, तो हमारे पास आते हैं जी 78। तो इसका मतलब ये है कि चूँकि हम परसेंट ले रहे हैं 100 में से ले रहे हैं, तो ये 78। तो हमारी जो रेशियो स्टूडेंट्स के पास होने की है वो लाई करेगी बिटवीन 42% टू 78%। ठीक है, इट वुड बी अ करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा। नेक्स्ट आ जाएं जी, थर्ड हमारे पास MCQs है। ठीक है, अगर इसको ऐसे कर देते हैं, अगर नज़र आ जाए अच्छे से, सो वेल एंड गुड। ये देखें, अब हमने जो बेसिकली चेक करना है कि थर्ड MCQ से हमारे पास हाउ मैनी टाइम्स आर एन आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर राइट एंगल्स ड्यूरिंग देयर मोशन फ्रॉम 1 PM टू 10 PM। तो हमारे पास टाइम है जी 1 PM टू 10 PM। इस टाइम के दौरान हमें देखना है कि आपके पास जो आर हैंड है और मिनट हैंड है किसी भी क्लॉक में, तो वो कितने टाइम एक दूसरे से 90 के एंगल पे आती हैं, जो कि राइट एंगल है। तो बेसिकली इट इज़ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे कितनी दफ़ा आती हैं, तो इसको हम चेक करेंगे। सो लेट्स चेक इट। इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली देखें, हमें पता है कि आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि एक घंटे में आपके पास जो मिनट हैंड है और आर हैंड है 2 टाइम्स राइट एंगल पे आती हैं। जब एक घंटे में 2 टाइम्स आती हैं, तो आप देखें आपके पास टाइम क्या है 1 टू 10 PM। तो टोटल घंटे हमारे पास कितने बनेंगे, ये 9। ठीक है, ये 9 बन रहे हैं। 1 टू 10 अगर हम करें तो हमारे पास टोटल ये वाले बन रहे हैं 9 आवर्स। चूँकि हमें पता है कि एक घंटे में 2 दफ़ा जो है वो राइट एंगल पे आती हैं ये दोनों आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे के, तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा 9 इंटू आप सिंपली 2 करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा दैट वुड बी 18। नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास, देयर आर 240 बॉल्स एंड n नंबर ऑफ बॉक्सेस है हमारे पास, जो कि हैं B1, B2, B3 एंड Bn। द बॉल्स आर टू बी प्लेस्ड इन द बॉक्सेस सच दैट शुड कंटेन 4 बॉल्स मोर देन B2, B2 शुड कंटेन 4 बॉल्स मोर देन B3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो हमने n की पॉसिबल वैल्यू जज करनी है। यहाँ पे हमारे पास टोटल हैं 240 बॉल्स। हमारे पास कितनी बॉल्स हैं जी, 240 बॉल्स हैं हमारे पास। एंड देन वो बताना चाह रहा है कि यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास हर बॉल का डिफरेंस जो होता है B2 का, यहाँ पे देखें आपको जो डिफरेंस वो बताना चाह रहा है, कहता है कि B2 माइनस B1 डिफरेंस इज़ 4। ठीक है, B2 माइनस B3 डिफरेंस इज़ 4। तो आपके पास बेसिकली डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है BN तक फॉर एग्जांपल। और टोटल बॉल्स आपके पास 240 हैं और n की पॉसिबल वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो सिंपलेस्ट इज आंसर आप ये करें कि आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट वुड बी 4 का डिफरेंस आ रहा है। एंड आपको पता है कि टोटल कितनी बॉल्स हैं, आपके पास हैं 240 बॉल्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या मालूम करना है, n की पॉसिबल वैल्यू मालूम करनी है। तो n की पॉसिबल वैल्यू फॉर एग्जांपल हम अगर n या x इसको कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं x कहना चाहते हम इसको n कह देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास है जी 240 इंटू n इंटू 4। तो हमारे पास n की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास अरेंजमेंट ये बनेगी 4 का डिफरेंस है, n नंबर ऑफ बॉल्स है हमारे पास टोटल 240 हैं। तो n की वैल्यू के लिए आप 240 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 60। तो आपके पास n की वैल्यू आ गई है जी 60। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं आप उसको चेक करेंगे। लेट मी अरेज सम फ्यू वैल्यूज सो दैट यू कैन सी हियर। तो बेसिकली हमारे पास जो है ये कहाँ, यहाँ पे देखें 4 है हमारे पास, डिजिट 4 पे डिवाइड करें फर्स्ट ऑफ ऑल, सो इट इज़ डिविजिबल। ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा, 2 3 बार 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप 60 को 6 पे डिवाइड करेंगे इट इज़ पॉसिबल, आपके पास 10 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप 60 को 5 पे डिवाइड करेंगे सो दैट इट इज़ पॉसिबल, सो आपके पास ये 12 आ जाएगा। सो यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर कि आप इस तरह से इनको डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पे 7 डिजिट की, तो 7 को अगर आप 60 पे डिवाइड करते हैं तो इज़ इट पॉसिबल। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n हैं दैट वुड बी 7। सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n की आपके पास आ जाएगी 7।
So this is the right answer. So this is the right answer here. अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास जो MCQs है. अ मैन फिल्स अ बास्केट विद एग्स इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ एग्स एडेड ऑन ईच सक्सेसिव डे इज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बास्केट. दिस वे द बास्केट गेट्स completely filled in 24 days. After how many days the basket was 1/4 filled? So it's very easy question, just focus on it. सिंपली आप ये देख सकते हैं कि हमें पता चला है कि 24 डेज़ में जो आपके पास बास्केट है वो फुल हुई है. ठीक है, ये कम्प्लीटली फुल हो चुकी है 24 डेज़ में. अब हमें नेक्स्ट हमने 1/4 फुल बतानी है. तो इसका मतलब ये है कि 23rd डे को बास्केट जो होगी वो आपके पास हाफ होगी. बिकॉज इन्होंने ये कहा है कि देखें, एग्स नंबर ऑफ एग्स एडिड ऑन ईच सक्सेसिव डे इज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बास्केट. अगर हाफ प्रेजेंट थे ऑलरेडी तो 24th डे को वो फुल हुई है. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 23rd डे को वो हाफ थी. अब नेक्स्ट जो हाफ थी उसमें आपको पता होना चाहिए कि 1/4 22 डेज से 22nd डे यानी कि 22वें दिन आपके पास वो बास्केट जो थी वो 1/4 होनी चाहिए. सो दैट कि आपके पास जब 1/4 होगी तो उसमें 1/4 आप और ऐड करते हैं तो दैट वुड बी हाफ. सो दैट्स वाई यू कैन सी कि आपके पास जो बास्केट थी वो 22nd डे को 1/4 फिल्ड होगी. सो द करेक्ट आंसर इज 22 here. So this is the correct option here. नेक्स्ट MCQs देख लेते हैं जी हम. The diameter of the two circular coins are in the ratio of 1:3. ये रेशियो इन दोनों की. The smaller coin is made to roll around the bigger coin till it returns to the position from where the process of rolling started. How many times the smaller coin rolled around the bigger coin? So यहाँ पे डायमीटर बेसिकली हमें दिए हुए हैं. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, आप देखेंगे पेरीमीटर. पेरीमीटर होता है आपके पास बिगर कॉइन का. ठीक है, अगर हम इसको देखें इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर कॉइन, तो आप स्मॉलर कॉइन का पेरीमीटर ले लेंगे. तो पेरीमीटर बेसिकली आपके पास क्या होता है? कॉइन का 2 इंटू और आपके पास ये दिस इज़ द डायमीटर हेयर. सो जो भी इसका डायमीटर था वो आप यहाँ पे लिखेंगे. एंड देन आपके पास स्मॉलर कॉइन का होगा तो 2 इंटू 1. सो आपके पास जो ये वैल्यूज़ आ रही हैं वुड बी कट ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 इंटू 1. तो इट्स मीन दैट कि जो स्मॉलर कॉइन है वो आपके पास 3 जो है वो टाइम्स 3 राउंड्स लेगा बिगर कॉइन के राउंड, अगर उसका डायमीटर जो है उसकी रेशियो 1/3 है. तो आंसर इज 3. सो इट इज़ इनफ